Class 7 Science. I am R.S. Prasad sir. Today with chapter 2, that is the water, and this is question answer. Let us start. What will in your chapter? तो ये अर्थ है, अर्थ पे पानी कितना अवेलेबल है वाटर वो बताएगा। तो मोस्ट ऑफ द जो वाटर है वो ओशियन में। ओशियन में देखो आपको ये पूरा जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये सारा ओशियन का है, और बाकी जो है नंबर 2 पे आइस में है, कुछ बर्फ जमी हुई है, ये वाला पोर्शन आइस का है, ये वाटर का है, ओशियन से है। और जो बाकी अदर सोर्सेस है वो ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है, तो ये येलो कलर का अदर सोर्सेस से वाटर में ऑक्सीडेट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं परसेंटेज किसमें कितनी कितनी होती है। तो यहाँ नेम दिए हुए आइटम के और यहाँ एप्रोप्रिएट परसेंटेज है वाटर की बाई वेट, वेट के अनुसार उनकी परसेंटेज। तो एलिफेंट है, एलिफेंट में 80% वाटर होता है। प्लांट है, प्लांट में 60% वाटर होता है। ब्रीड है, ब्रीड में 30% वाटर। मिल्क है 95% वाटर। टमाटो है 90% वाटर। ऑरेंज है 85% वाटर एंड पोटैटो दैट इज द 80% वाटर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और जरा देखते हैं, 3/4 अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, however the amount of usable water is very small portion of this। मतलब इतना पानी होते हुए भी पीने का पानी बहुत कम है हमारे पास। वाटर इज नेसेसरी फॉर लिविंग, इट्स एक्ट्स एज द मीडियम ऑफ वेरियस लिविंग प्रोसेस, लिविंग प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। So aquatic organisms use oxygen dissolved in water for respiration, and the carbon dioxide is used by plants in photosynthesis. Drinking water should be free of suspended impurities and harmful microorganisms. Water can be made bacteria free by bleaching powder. So potassium permanganate and ultraviolet rays are used for this. Freezing point of the distilled water is 0 degrees centigrade or 0 degree C, and the boiling point of the water that is 100 degree C. So density of water is maximum at 4 degree C। ये बहुत ज्यादा याद करना बच्चों, 4 डिग्री सी पे मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती रहती है। Sea water is unfit for drinking due to large quantity of salts being present in it. So density of water is more than the density of ice. So water is a universal solvent, solubility of different substance in water is different। हर एक चीज जो है डिफरेंट तरीके से बोलता है वाटर। So water is made up of hydrogen and oxygen। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है H2 और O2 से। इसके 2 पार्ट्स हैं, इसके 1 पार्ट है। By electrolysis of water we can see the volume of the hydrogen in water is double than the volume of oxygen। ये एक्टिविटी के द्वारा हम दिखाएंगे चैप्टर। So water gets polluted due to the impurities। Impurities के कारण water pollute हो जाता है। So waste of water can be reduced by rain water harvesting। Now come to the question number 1. Why can't human beings use water available in the ocean for their daily activity? So you can write the answer. Ocean water contains large amount of salts, due to which its water is saline and hard. Thus, due to saline and hard water of ocean, it cannot be used by human beings in daily activities. Now, second question, why is water essential for human body? क्यों है जरूरी? For the various activities performed in man body, water is essential in the form of medium. So, water is necessary for digestion of food in stomach, its absorption and its transportation in the body. So it is necessary. Now third question, what will happen if the plant in a pot is not watered? Explain giving reason. So that is your answer. If the plants in a pot is not watered, then the plant will dry up slowly. The cause of this is that roots of the plants absorb dissolved minerals and salt from water and transport it to different parts of the plant. So due to which plant remains green, and green plants manufacture their food themselves. Fourth question, how is water important from aquatic organisms? So answer is water is a habitat for aquatic organisms, and aquatic organisms use the oxygen dissolved in water for respiration, and water plants use carbon dioxide dissolved in water for photosynthesis.
So this is the collecting of distilled water. ये आपने दे रखा है, इसके पहले एक कपड़ा बांध देना है आपको। कपड़ा बांधने में बकेट है, बकेट में कपड़ा बांध दिया गया है आपने, और ऊपर से जो रेन वाटर गिरता है उसके लिए यहाँ पे कलेक्शन के लिए दिखा रखा है। वाटर कलेक्शन के लिए स्टोन है यहाँ पर, ये दिखा हुआ, जिससे ये फिल्टर होता है। और ये बावल है यहाँ पे नीचे जो रखा है जिसमें फिल्टर होकर के गिरता है। ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट है आपकी जो दिखाई दे रही है। और ये यूटेंसिल्स है, यानी कोई सा बर्तन का बाल्टी ले सकते हैं। तो डिस्टिल वाटर क्या होगा, नीचे कलेक्ट हो जाएगा पॉट के अंदर, इजिली फिल्टर कर सकते हैं इसको, और ये पानी पीने लायक बन जाता है वैसे तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 1, व्हाई इज वाटर फ्रॉम ऑल सोर्सेज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग? क्यों नहीं है हर sources? So water from all sources is not fit for drinking because water from different sources can have dissolved salts, suspended particles and microorganisms, so which are harmful for our body. Which methods are applied to make water fit for drinking? So you can write the answer. To make water fit for drinking, it should be boiled and then filtered. Some chemicals like potassium permanganate and bleaching powder etc. also can be added to it. To remove suspended impurities of water at home, we can use a filter fitted with ceramic candles. Nowadays, ultraviolet rays are also used to make water germ free. हम यहाँ पे पोटास एलम भी डाल करके कर लेते हैं बच्चों, ध्यान रखना। फिटकरी जिसको बोलते हैं, पोटास एलम से भी हमारी पानी पीने लायक बन जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्टिल वाटर? डिस्टिल वाटर मैंने बता दिया था कैसे कलेक्ट किया गया था। तो ये है डिस्टिल वाटर इज द प्योरेस्ट फ्रॉम ऑफ द वाटर, ये प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की। सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन laboratories. So distilled water is obtained by evaporating water to produce water vapor and then condense these water vapors to get water. So that is the flow of conduction of electricity. कैसे वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। So that is the cell, ये आपको दिखाई दे रहा सेल, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसको वायर के थ्रू यहाँ जोड़ दिया गया। ये आपका बल्ब दिखाई दे रहा है, बल्ब है, और ये सारी कॉपर वायर्स है, ये दिखाई दे रही है वाउंड वाउंड करके कॉपर। ये दो इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो दैट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इट इज कॉल्ड एज एनोड एंड इट इज कैथोड। सो वाटर विद सॉल्ट, इसके अंदर सॉल्ट डाल देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। जैसे हम इससे सेल से इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोड्यूस करते हैं, बल्ब हमारा ग्लो हो जाता है, ये जलने लगता है बल्ब को। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, व्हाई इज वाटर कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? हर चीज तो भूली जाती है लगभग, so it is called as water, universal solvent. Water has the ability to dissolve a large number of substances in it, therefore it is called a universal solvent. मतलब इसमें अधिकतर चीजें घुल जाती है। ये डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, याद कर लेना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कहीं पे जरूरत पड़ेगी जिसको यूज कर लेंगे। So next question, write the names of the sum of those salts that are present in sea water. कौन कौन से sea water में present है उसके नाम लिखने हैं। In 1 liter of sea water there are about 35 gram of salts. So common salt, that is the sodium chloride, is the main salt present, but small quantities of the sodium bromide, magnesium chloride and the potassium iodide are also present. Write the salt not on the following. First है saturated solution, second है solubility. Saturated solution का मतलब है डिजोल्व करते जाओ सॉल्वेंट को, जब तक डिजोल्व करो जब तक ये घुलना ना बंद हो जाए, उसी को saturated solution। So you can write your answer, saturated solution, the solution which cannot dissolve any more amount of solute at a given temperature is called saturated solution. So solubility, dissolve जिससे सॉल्ट का जो डिजोल्व हो रहा है उसके लिए मैक्सिमम डिजोल्विटी होती है। So the maximum quantity of a given substance that is soluble in 100 ml of water at a specific temperature is the solubility of the substance at that temperature.
Now, due to which property of water does sunlight reaches the water plants? So, due to transparency of water, sunlight reaches the water plant. Now, how do plants and animals living inside water and in cold regions survive even after the freezing of water? So, in extreme cold climates, when the atmospheric temperature is less than 0 degrees C, the water on the surface of sea and on the ponds start freezing. Being less density than water, ice floats on the water surface. As ice is a bad conductor of heat, so the heat trapped inside cannot get out and temperature of the water is maintained temporarily higher. This is the reason why creatures living in cold regions remains alive underwater, even though the surface outside has frozen to ice. जबकि बर्फ जम जाती है तब भी ये जिंदे रहते हैं, क्योंकि वाटर के ऊपर जो आइस है वो फ्लोट होने लगती है और फ्लोट करके वो हीट का बैड कंडक्टर है, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती है, अंदर के अंदर को रोक लेती है, इसलिए अंदर के जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदे रहते हैं. स्टेट द रीजन वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. तो बड़ी सिंपल है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो जाती है आइस की विद रिस्पेक्ट टू द वाटर. So normal, the solid form of a substance is denser as compared to its liquid form, but behavior of water is opposite to it. So liquid form of water is denser than its solid form. So therefore, ice floats on the water. How would you identify hard and soft water? ये तो वॉश करने पे साबुन के साथ जो ज्यादा झाग दे देता है वो सॉफ्ट वाटर होता है, जो कम झाग देता है वो hard water होता है. So you can write here soft water, water which form lot of leather with the soap is called soft water. And hard water, water which does not give good leather with soap is called hard water. With the help of an experiment, show that water is made up of two gases. So you can write this one to find the constituent of the water. We electrolyze it. इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. So material required क्या क्या है? A wide mounted plastic bottle, knife, rubber cork with 2 holes, a stand, sulfuric acid, water, 2 carbon rods, 2 test tubes with cork, battery 6 volt and matchstick and matchbox भी चाहिए. ये सारा apparatus यहाँ लगाया हुआ दिख रहा है आपको. ये कार्बन के इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं ये वाले आपको, और यहाँ से बैटरी के द्वारा ये बैटरी दिख रही है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से कनेक्ट कर दे रहे हैं वाई के थ्रू. और इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो टेस्ट ट्यूब में बबल्स के थ्रू ये बबल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बनते हुए ऊपर कलेक्ट होने चालू हो जाते हैं. तो जिसका अमाउंट ज्यादा है वो हाइड्रोजन गैस है. हाइड्रोजन गैस जो लगभग डबल होती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन कलेक्ट हो रही है एक तरफ और एक तरफ हाइड्रोजन कलेक्ट हो रही है. ध्यान रखना, पॉजिटिव साइड में ऑक्सीजन कलेक्ट होती है. ये पॉजिटिव साइड है, इधर एनोड है, इसको एनोड बोलते हैं. इधर वाला एनोड हो जाएगा, ये इधर कलेक्ट होती है ऑक्सीजन, O2 कलेक्ट होती है. यहाँ बच्चों O2 लिख देंगे और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, H2 कलेक्ट होती है. और ये जो है आपका नेगेटिव वाला है इसको कैथोड बोलते हैं. ये ध्यान रखना, कैथोड पर हाइड्रोजन कलेक्ट होती है और इनका जो रेशो होता है 2:1 होता है. ऑलवेज रिमेंबर H2:O2 इज इक्वल टू 2:1. तो ये लिखना है आप लोगों को, लिखना तो आप लोग बुक से देख करके लिख लेंगे. मैं इसको ज्यादा पढ़ करके नहीं सिखाऊंगा, थोड़ी देर लिए रोक दे रहा हूँ, इसे रोक करके आप लोग लिख लेंगे. वैसे बुक में लिखा हुआ है सारा कुछ, जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही आपको करना है इसको. चलिए नेक्स्ट में बढ़ना चालू होता हूँ. By this we can see that water is formed by the reaction between the hydrogen and oxygen, and the volume of hydrogen is double that of oxygen. ये आपको फिल्टर करना बताया गया. ये कोनिकल फ्लास्क है, आपको दिखाई दे रहा है, कोनिक फनल है, ये यहाँ पे दिखाई दे रही फनल है और इसके अंदर फिल्टर पेपर रखा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है आपको अंदर. और फनल के अंदर ग्रेप्स हैं ये बने हुए, ग्रेमल्स हैं और सैंड है इसमें.
और ये कॉनिकल फ्लास्क आपको दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पॉट कॉनिकल फ्लास्क है, और ये फिल्टर्ड वाटर है, यहाँ पे जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा वाटर फिल्टर होकर के निकला है। यहाँ से जो है जो भी वाटर था आपका इम्प्योर वाटर ऊपर से डाल दिया गया था, यहाँ पे इम्प्योर वाटर डाला गया था, हम यहाँ पर फिल्टर वाटर मिल जाता है। तो ये प्रोसेस है हमारा फिल्टर प्रोसेस, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस। सो यू कैन डू दिस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन के मेन कॉजेज बताने हैं, और व्हाट मेजर्स वुड यू टेक टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन? क्या क्या उपाय करोगे वाटर को पॉल्यूट होने से बचने के लिए? तो योर आंसर इज द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो। सेकंड है एनिमल्स एंड द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड है इंडस्ट्रीज। और फोर्थ है एग्रीकल्चर एंड वेस्ट मटेरियल। और फिफ्थ है केमिकल सब्सटेंस एक्सेट्रा। तो फॉलोइंग आर द मेजर्स टू विच टेक टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। फर्स्ट है गार्बेज excreta like waste material should not be dumped directly into rivers. तो लैक और पॉन्ड इसमें डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। सेकंड है डेड बॉडीज स्टैच्यूज should not be directly thrown into water. थर्ड है वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एक्सेट्रा should not be directly deposited out in water sources. Fourth and minimum quantities of the harmful insecticides should be used in organic और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत कम इंसेक्टिसाइड्स को यूज करना चाहिए, वो भी हमें टॉक्सिक बना देता है वाटर को। वाई इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर नेसेसरी? क्यों है इसको स्टोर करना, पानी को बचा के रखना? तो अमाउंट ऑफ वाटर and available on the earth is very less than the water utilized by human being. It is equal to 1 ml in about 10 liters. So due to industrial development and the urbanization, the number of wells and the ponds is continuously decreases and groundwater level is decreasing, which can become a cause of water crisis in the future. Thus, to save from water crisis, water conservation is necessary. Now come to choose the correct answer. So you can write the first है ice is floats on the surface of water because क्यों float करती है? So it is the density of ice is less than water. ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। Now second ये the ratio of the hydrogen and oxygen in water, that is the 2:1. तो ये क्या है? ये as per their volume, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होती है बच्चे। नाउ सेकंड है वाटर साइकिल इज, क्या है वाटर साइकिल? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एवपोरेशन एंड द कंडेंसेशन, यानी कि ये प्रोसेस है हमारा एवपोरेशन और कंडेंसेशन का। नाउ कम टू द डिस्टिल वाटर इज क्लोजेस्ट टू, डिस्टिल वाटर किसके क्लोजेस्ट होता है? सो यू कैन से इट इज द रेन वाटर, रेन वाटर के क्लोजेस्ट होता है डिस्टिल वाटर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इसमें भरना है। वाटर इज अ सॉल्वेंट, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो यू कैन राइट हियर यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बी है गैस इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन गैस, तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यू कैन राइट हियर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड more soluble than oxygen. So you can write here oxygen. Now C is, ये है hardness in water is due to calcium magnesium salts. यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम। नाउ ये सी हो गया आपका। डी वाले में क्या? डिस्टिल वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज अ बैड कंडक्टर, so you have to write bad conductor. C is gas obtained by electrolysis of water produce a pop sound on the burning, that is the hydrogen, so you have to write here hydrogen. Next identify true and false statement and rewrite the false statement after correcting them.
तो फर्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू मेक वाटर बैक्टीरिया फ्री, ये बिल्कुल सही है, दैट इज द ट्रू। नाउ डिस्टिल वाटर इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ये फॉल्स है। सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ये भी फॉल्स है। डेंसिटी ऑफ आइस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी फॉल्स है। एंड हीटिंग वाटर kept at 0 डिग्री सी लीड्स और टू एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो ये भी आपका फॉल्स है। चलो देखते हैं राइट क्या है हमारे पास। तो ये देखना है डिस्टिल वाटर इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, तो ये आपको फॉल्स बताया था मैंने, डिस्टिल वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, तो यू कैन करेक्ट दिस। सी था इसमें क्या, सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद टेम्परेचर, तो ये फॉल्स था, इसको सही करके लिखना। सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, इंक्रीज करने पर ये डिक्रीज होती है। डी है डेंसिटी ऑफ आइस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका रिवर्स था बच्चों, तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये है हीटिंग वाटर इज केप्ट एट 0 डिग्री सी लीड्स टू एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो ये आपका फर्स्ट था, हीटिंग वाटर केप्ट एट 0 डिग्री सी लीड्स टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो ये इस तरह से आपको सही कर लेना है करेक्शन करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज देयर इज अ वाटर क्राइसिस इवन देन थ्रो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, 3/4 वाटर होने के बाद भी क्राइसिस है वाटर की, क्यों है किल्लत हमारी। So 3/4 of the Earth's surface is covered by water, but maximum water is saline. Due to this, which does not remain fit for daily life. So our 1% of water of rivers, lakes, etc. is suitable for us, your use. हमारे यूज के लिए सुटेबल होते हैं। Therefore, there is water crisis. यहाँ पर पानी की किल्लत है। चलिए देखते हैं क्या है। What would happen if all sources of water in a forest dry up? सारा पानी सूख जाए तो क्या हाल हो जाएगा? If all sources of water in a forest dry up, the organisms of forest, animal, forest resources will be get destroyed, which in turn will produce an adverse effect on human beings. Explain water cycle on the earth. So water from ocean, ponds, lake and other sources is continuously evaporating. Our plants and animals also produce more water vapor through various living process. This water vapor keeps accumulated in the atmosphere. ये आपको दिखा रखा है, ये वाटर साइकिल है, ये रिवर्स वगैरह या ओशन वगैरह का वाटर है। वाटर क्या करता है, वेपर बन जाता है, वेपर बन करके ये ऊपर उड़ना चालू होता है, क्लाउड की फॉर्म में आता है, कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होने के बाद फिर ये रेन में वाटर नीचे आ जाता है। और जब नीचे आ जाता है तो क्या होगा, इसके फिर फ्लो होते हुए फिर से यहीं से चला आता है और ये वाटर पूरा साइकिल चलता रहता है। इस तरह से वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाती है। नाउ एज वाटर वेपर आर लाइटर दे राइज अपवर्ड इन the upper layer of the atmosphere, the temperature is lesser, and because of this the water vapor condenses to small droplets of water and form clouds. When small droplets of water comes together, then big droplets of water are formed and they start falling in the form of rain. This way water reaches its various sources again and water cycle is completed. ये फिगर मैंने आपको दिखा दी थी, फिगर वही बनानी है आपको। हाउ विल यू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, व्हाट वुड हैपन इफ दिस सॉल्यूशन इज हीटेड। चलिए देखते हैं। अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर इज टेकन एंड सम शुगर इज एडेड इन इट एंड स्टेयर्ड टू डिसॉल्व इट, इसको हिलाते रहेंगे अच्छी तरह से। शुगर इज एडेड टिल नो मोर शुगर गेट्स डिसॉल्व, दिस वे द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द शुगर। If this solution is heated, then more sugar will be dissolved. Water containing salts is a good conductor of electricity. Give an activity to explain it. So, when electricity is passed through water containing salt, then the salts present in water dissociate into ions. These ions help in the conduction of electricity. Therefore, water containing salts is a good conductor of electricity. What
is water pollution. Write the causes of water pollution. So ये है many chemical substances, excreta and other unwanted substances like waste material, dirty water from drains get mixed with water from different sources. So due to this, the water becomes unfit for drinking and household use. This water is called polluted water. The substances which pollute water are called pollutants, and the process of the water getting polluted is called water pollution. Causes of water pollution, you can write this one. People throw the waste and the rotten from their homes into drains. Now second है water gets polluted by throwing dead bodies, idols of God in waters. Third है waste material thrown by the hospitals, urine and the excreta of animals also pollute water. Fourth है insecticide and the pesticides used in agriculture in excess pollutes water. ये भी pollute करते हैं water को. Next है what would you do to stop water pollution in your city or village. देखो क्या करते हैं आप लोग, क्या रोकने के लिए करेंगे इसको पोल्यूशन को. So to stop water pollution in city village, following steps has been taken. क्या क्या? First है dead bodies and the idols should not be thrown in water. Second क्या है? Waste product and the excreta waste of animals should not be thrown in pond and sea and lakes. Third है the waste from industry. Waste from industries should not be thrown in water. Fourth है in agriculture there should be less use of insecticide and pesticides. आजकल तो पेस्टिसाइड के बिना सब्जी ही नहीं होती है. चलिए आगे देखते हैं. What is meant by rain water harvesting? Collecting of rain water and using it for different purpose is known as rain water harvesting. The rain falling on the house roof is collected and routed to the pit in the ground through pipes. तो ये आपका चैप्टर बच्चों समाप्त हो रहा है. नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे. आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है इसके अनुसार मैं वीडियो और बना करके देता रहूंगा. और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके. अगर नहीं वीडियो देख सकते तो कम से कम कॉपी आप लोग दे देंगे जिससे वो अपना काम पूरा कर सके. और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.